Hello students, welcome to the next lecture on the Lysander polynomial. Today we will derive some recurrence formula of the Lysander polynomial. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the ordinary differential equation. As you can see, the orthogonal properties, generating function, Rogers formula, Lysander polynomials and many more lecture available related to the ordinary differential equation in a single playlist. As I mentioned you, we have already covered all those first 7 topics in our ordinary differential equation playlist. Today's lecture is on the recurrence relation. After this lecture, we will cover the trigonometric series, bounds, and finally we will cover the CSR net and the gate quotient. So our target is how we can derive some recurrence formula. पर सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि why there is a need of the recurrence formula. Why there is a need of the recurrence formula. तो जैसा कि हम जानते हैं, in our previous lecture we learned the concept of the Lysander polynomials, recurrence formula for the generating the recurrence Lysander polynomials and the generating formula of the Lysander polynomials. The purpose of all these Lysander, Rogers and the generating formula is to compute the values of the p and x. After substituting the value of the n is 0, you can get the value of the p0x. Similarly, if you substitute x is equal to 0, you will again get the value of the p0x. And how you can compute the p0? I can substitute n is equal to 0 on the left hand side and the right hand side. You can get the p of 0x, and similarly for the other values. But whenever you have to find n for the larger value, then all these three methods will take a lot of the time. So in order to deal with the larger values and to compute some relationship between the next pnx and the preceding pnx, we can generate some recurrence formula. There are the 6 standard recurrence formula occurring in the literature which correlate the relation between the pnx with the successor value as well as the preceding values. Similarly for the derivatives. Make sure students, throughout this lecture, wherever I have used the notation pn, that is itself implies that p and x. Fine. Similarly, if I write as a pn prime, that implies derivative of the pn with respect to x. तो मतलब अगर मैंने ये ब्रैकेट वाला x नहीं भी लिखा तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर x का ये फंक्शन है. Now we have discretized the 6 standard recurrence formula in the 3 category. The category 1 is when involvement of the pn, the next value pn minus plus 1 and the preceding value pn minus 1. Second is relations between involving the derivative, which can find the relationship between the pn prime and the preceding value, pn prime and the next value, and the preceding value and the next to next value. And we have involved the mixed one, that is a pn भी होगा, pn prime भी होगा, pn minus 1 भी. These are the 6 standard recurrence formula. The proof is a very simple. We can start from the generating formula and get the required answer in a very simple manner. So let's start with the first recurrence formula proof. We can start from the generating formula. Look at that. Our target is to make x into pn. Fine. सबसे पहले मैं इसको partially differentiate कर देता हूं. You can differentiate partially with respect to t. x के साथ तो डिफरेंशिएट नहीं ना बोला फर्स्ट पार्ट में, लेकिन सेकंड पार्ट में बोला है. तो जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो इस वाली लाइन को हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में कहीं पे डेरिवेटिव नहीं है. सो आई कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, माइनस हाफ 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2 इंटू माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2t. What were the right hand side? Differentiate with respect to t. So pnx is my constant. Fine. Into t की power n minus 1. Is it okay? I can simplify that. I can take in 2 as a common. That will be cancelled. Minus as a common x minus t. यहाँ पे आपको चाहिए t की पावर माइनस हाफ.
आई कैन ब्रेक 2xt प्लस टी स्क्वेयर ऑफ माइनस हाफ अलग कर दिया, और जो नीचे आएगा उसको मैं राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ऐसे तो आएगा ना, इंटू समेशन क्वांटिटी. इज इट ओके? आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ -1 माइनस 2xt फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो ये क्या बन गया? x माइनस टी समेशन ऑफ पी एन एक्स टी की पावर n. इज इट ओके? नाउ वी कैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n. जैसे मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोफिशिएंट क्या बनेगा? x इंटू पी एन एक्स. ठीक है, जैसे मैं अगली टर्म खोलूंगा ब्रैकेट, तो दैट विल बी माइनस पी एन टी की पावर n प्लस 1. अब यहां पे t की पावर n कब बनेगा? ये व्हेन आई रिप्लेस n टू बी n माइनस 1. तो इसका कोफिशिएंट क्या बन गया? p ऑफ n माइनस 1. सिमिलरली फॉर द राइट हैंड साइड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है 1 के रिस्पेक्ट में t की पावर n कब बनेगी? व्हेन आई रिप्लेस n टू बी n प्लस 1. तभी तो ये n प्लस 1 करके n बनेगा ना. तो ये क्या बन गया? n प्लस 1 इंटू पी ऑफ n प्लस 1. सेकेंड टर्म करेंगे तो t के साथ करेंगे तो ऑलरेडी ये t की पावर n बन गया. सो दैट इज अ 2nx p की पावर n. और यहां t स्क्वायर से करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका t की पावर n प्लस 1. और ये n कब बनेगा? जब मैं n को रिप्लेस कर दूंगा n माइनस 1 से. तो इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट दी एक्सप्रेशन. इज इट ओके? नाउ यू कैन रीअरेंज देम. लेफ्ट हैंड साइड पे x इंटू पी एन होना चाहिए. x इंटू पी एन राइट साइड पे ले जाओ, यू विल गेट 2n प्लस 1 इंटू x ऑफ पी एन. राइट हैंड साइड पे p ऑफ n प्लस 1. तो ये आपका एक ही एक्सप्रेशन है. फाइन. और पी एन माइनस 1, पी एन माइनस 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट द रिक्वायर्ड फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन. नाउ हाउ यू कैन प्रूव द सेकेंड रेकरेंस रिलेशन? यहां पे आपको क्या चाहिए? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लेकिन आपको n इंटू पी एन भी चाहिए. तो n इंटू पी एन तो आपके पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ लिखा ही हुआ है. फाइन. नाउ राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए? प्राइम. तो इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर देता हूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ इज आउटसाइड, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -3/2 इंटू एक्स के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ 2t. तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? पी एन प्राइम इंटू टी की पावर n. तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस एन माइनस प्लस आई कैन राइट एज ए टी इंटू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -3/2. फाइन. यू कैन डिवाइड देम. अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3. इफ यू डिवाइड देम, what will happen? X minus t divided by t, which is summation of n pn t की power n minus 1 divided by summation of pn prime t की power n. You can cross multiply them, you will get the expression. Fine. इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये कितना हो जाएगा? t की पावर n. Fine, which is equal to x into, now you can equate the coefficient of t रेज टू पावर n. तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू पी एन, राइट हैंड साइड में x इंटू पी एन प्राइम. यहां पे n कब बनेगा? फाइन. व्हेन यू रिप्लेस n टू बी n माइनस 1. तो यहां पे इसका कोफिशिएंट भी बदल दो, n माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड सेकेंड रेकरेंस रिलेशन. थर्ड रेकरेंस रिलेशन. थर्ड में देखो आपको क्या चाहिए? P एंड प्राइम. तो इसका मतलब सेकेंड रेकरेंस रिलेशन काम आएगा, और आपको चाहिए पी एन ऑल्सो. फाइन. सो 2n प्लस 1 मतलब बाय यूजिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड रेकरेंस रिलेशन. अब आप देखो P ऑफ n प्लस 1 प्राइम. तो यहां पे प्राइम कब आएगा? इफ यू डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो Pn प्लस 1 प्राइम आएगा. तो यू कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x. तो ये क्या हो गया, 2n+1 इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड कितना हो गया, n+1 इंटू pn+1 प्लस n इंटू pn-1 प्राइम. यही आएगा. फाइन. आई कैन ओपन द ब्रैकेट. इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन. अब आप इस थर्ड वाले में देखो, आपको ये नहीं चाहिए, pn प्राइम कहीं चाहिए, थर्ड वाले प्रूफ में कहीं नहीं चाहिए. इसकी वैल्यू कहां से निकालोगे, आई कैन यूज द सेकेंड रेकरेंस रिलेशन, बिकॉज सेकेंड हम प्रूफ कर चुके हैं ना. तो आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द x इंटू pn प्राइम फ्रॉम द सेकेंड रेकरेंस रिलेशन. अब आप ओपन कर दो ब्रैकेट, यू विल गेट pn. यहां पे भी एक pn है, 2n+1 इज अ कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, n+1 ऑफ pn. pn-1 प्राइम, pn-1 ऑफ प्राइम लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 2n minus n is n plus 1 pn minus prime, which is n plus 1 p of n plus 1 prime. So clearly say n plus 1 will be cancelled out and that is the required, इसको आप राइट साइड पे ले जाइए, is the required recurrence relation of the third. Now fourth recurrence relation में देखो आपको क्या चाहिए, pn+1 prime. pn+1 prime is third recurrence relation. x into pn prime, x into pn prime is my second. So by using the second and the third recurrence relation, तो आप देखो कि आपको क्या चाहिए, pn+1 माइनस, तो इसका मतलब अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आई कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द 2. फाइन. तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, सो 2n+1 माइनस n इंटू pn, ये pn-1 कैंसिल हो जाएगा, pn+1 प्राइम माइनस x इंटू pn प्राइम. तो आप देखो ये आपका बन गया ना, n+1 इंटू pn इज द रिक्वायर्ड फोर्थ रेकरेंस रिलेशन. फिफ्थ रेकरेंस रिलेशन में क्या चाहिए आपको, p ऑफ n-1, यहां तो डेरिवेटिव है. फाइन. pn-1 दैट इज द फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन. x इंटू pn, where is x into pn, that is the first. pn prime, that is my fourth recurrence relation, or you may taken as a second and the fourth. सबसे पहले देखते हैं x square into pn prime. ये x into pn prime है, इस वाली लाइन को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय x, तो क्या बन गया, nx pn विच इज इक्वल टू x square pn prime माइनस x इंटू, अब आपको क्या चाहिए, pn. तो यहां ये आपका pn है ना, अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस n बाय n-1, तभी तो ये pn बनेगा ना, सो दैट माय लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन विल बी कंप्लीट. सो रिप्लेस n बाय n प्लस n-1 इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. तो क्या करें, दोनों को माइनस कर दे. फाइन. अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 4. सो आई कैन यूज 4 माइनस 3. तो आपका देखो ये कितना बन जाएगा, ये दोनों इक्वालिटी के बाद तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर pn प्राइम, ये दोनों कट जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे n कॉमन. फाइन. so that will give you pn-1 x into pn is the required fifth recurrence relation. Look at the sixth recurrence relation. Your target is to find the p of n+1. तो p of n+1 कहाँ पे है, फर्स्ट में. फाइन. so I can start with the first and the fifth recurrence relation. तो आप देखो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर pn मिल गया. यहाँ पे क्या चाहिए, x इंटू pn, x इंटू pn भी है, n-1 नहीं चाहिए आपको. तो क्या करें, इन दोनों में से x ऑफ p ऑफ n-1 खत्म करना है आपको. तो आप क्या करें, 2-1 कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. फाइन. अब आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड पे यही चाहिए सिर्फ, बाकी को उधर ले जाओ. फाइन. और इसको x इंटू pn, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, दैट विल बी n+1 x इंटू pn माइनस n+1 p of n+1
और इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको मैं राइट साइड, तो यही प्रूफ करना था। देखिए n+1 कॉमन ले लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड सिक्स्थ रेकरेंस रिलेशन ऑफ द लीजेंडर polynomial. Fine. The first recurrence relation is one of the most important recurrence relation. The first and the second recurrence relation are the useful one, while third, fourth, fifth and sixth you can easily derive from the first and the second one. Fine. So we will see the next lecture on the trigonometry series of the Legendre polynomials, how you can write the p and x in terms of the cosine or the sine terms. Fine. So that will be see in our next lecture. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.